दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवास से महज कुछ दूरी पर गोलीबारी हुई। ये घटना स्थानीय समय अनुसार बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब हुई। दरअसल व्हाइट हाउस के पास सड़कों पर हुई इस गोलीबारी में कम से कम 3 लोग घायल हैं, जिनमें 2 नेशनल गार्ड शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है। व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के सदस्यों पर गोलीबारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमला आतंकवाद का कृत्य था। वाशिंगटन में वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के साथ हुई गोलीबारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने शहर में 500 और नेशनल गार्ड मेंबर्स को भेजने का ऑर्डर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज में अफगानिस्तान से अमेरिका में घुसे हर एक एलियन की फिर से जांच की जाएगी। आपको सुनवाते हैं हमले के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। My great fellow Americans, earlier today on the eve of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all types. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. And at the same time, we will not be deterred from the mission these service members were so nobly fulfilling. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops. बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान हो चुकी है। 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लखनवाल के तौर पर वो एक अफगानी नागरिक है। इस संदिग्ध बंदूकधारी ने व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर वाशिंगटन डीसी में तैनात वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड्स के 2 सदस्यों को एक हिंसात्मक घटना में गोली मार दी थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रहमानुल्लाह लखनवाल, जिसने 2 नेशनल गार्ड्स को गंभीर रूप से घायल किया था, अफगानिस्तान का एक प्रवासी। वो ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था, जिसके बाद उसे वाशिंगटन के बेलिंगहैम में बसाया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से बताया कि लखनवाल ने उत्तर पश्चिम डीसी से फर्रागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास करीब 2:15 पर इंतजार किया। इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उसने एक महिला गार्ड के सीने में गोली मारी, फिर उसके सिर पर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बंदूकधारी ने दूसरे गार्ड पर भी गोली चलाई, जब तक कि पास में तैनात एक तीसरा गार्ड दौड़कर उसे पकड़ नहीं लेता है। जब संदिग्ध ने उन पर गोली चलाई, तब दोनों हथियारबंद जवान सड़कों पर गश्त कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले के वक्त थैंक्सगिविंग के लिए फ्लोरिडा में थे। व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी को लेकर वो एक्शन में। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने चेतावनी भी दी कि जिस जानवर ने गार्डों को गोली मारी, उसे बहुत भारी कीमत
चुकानी पड़ेगी। साथ ही अफगानिस्तान के तमाम नागरिकों के इमिग्रेशन रोक दिए गए हैं।